So now students, we will discuss AC voltage across a inductor. So this is a circuit having inductance L and instantaneous voltage given across this, that is E naught sin omega t, that is E is equal to E naught sin omega t, okay, to a this inductive circuit. So we can say, as the alternating current flows through the inductor, a back EMF, that is L di by dt, is established. So as the alternating current flows through the inductor, back EMF L di by dt set up which oppose the applied EMF. Which oppose the applied EMF means, this means minus L di by dt will be introduced here. Okay, so net EMF will be equal to, so net EMF, that is equal to E minus L di by dt. It means net EMF, that is equal to E minus, means voltage across this minus voltage across this inductor. So that is net EMF is E minus L di by dt. But this EMF must be 0 because there is no resistance in the circuit. There is no resistance in the circuit. So we can say E minus L di by dt is equal to 0. Therefore, we have to find out the current. So it is given E is equal to E naught sin omega t. So we have to write E minus L di by dt, that is equal to 0, means E minus L di by dt is equal to 0 because there is no resistance across the circuit. So we can write E is equal to L di by dt, and what we have to find out the value of I. So the value of E is E naught sin omega t, that is equal to L di by dt, and di by dt, that is equal to E naught by L sin of omega t, sin of omega t. To find the value of I, we have to integrate. So on integrating this equation, that is di is equal to what? E naught by L sin of omega t into dt. So on integrating, what we will do here, E naught by L is taken outside and integration of di is I, that is equal to E naught by L, or integration of sin omega t, that is equal to minus cos of omega t divided by omega. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा. सो व्हाट इज थीटा हियर? ओमेगा टी. सो इट विल बी ओमेगा टी. देखिए क्या लिखेंगे हम, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू डी टी बाई, with respect to t we are differentiating it, dt by dt, that will be cancel out. So we have only cos theta minus cos theta by omega. Okay, so we will write the value of this is here. We will write, now I am rubbing this. So I is equal to, so the value of I is equal to minus, yeah, we can say minus E naught by omega L cos ऑफ ओमेगा टी. अब देखिए हमने ये इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन हमारे पास ये वाली कॉस वाली फॉर्म में आ गया. इसका मतलब हमें इसी फॉर्म में ये वैल्यू लेके आना. तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, और यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ, इसको देखिए माइनस साइन इधर ले जाइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो दैट इज कोस ऑफ थीटा, और बाहर है माइनस साइन. तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास देखिए ये बन गया आपके पास ई नोट बाई ओमेगा एल, क्या बना, ये रेजिस्टेंस है आपके पास. इसका मतलब ई नोट बाई एक्स एल हम इसको लिख सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. दिस इज एक्स एल इज व्हाट, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस. सो ये देखिए आप, दिस बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. अब इसका मतलब करंट जो है वो इस फॉर्म में आ रहा है. अब देखिए कैसे आएगा ये. सो आई इज इक्वल टू ई नोट
बाई एक्सएल को क्या लिखा हमने, ओमेगा एक्सएल को ओमेगा एल को हमने एक्सएल लिखा। इसका मतलब एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल। क्लियर। इसका मतलब ये वोल्टेज बाई करंट, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस क्या हो गया, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो इसको मैं आई नोट लिख दो या आई एम लिख दो। ठीक है, मैंने पहले ई एम में किया था, मीन्स मैक्सिमम एम लिया था। यहाँ पे आप ई नोट ले लो या आई एम ले लो, ई नोट ले लो या आई नोट ले लो, एक ही बात है। ठीक है, सो दिस इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये देखिए आप, हमने वोल्टेज इस फॉर्म में दी और करंट हमें इस फॉर्म में मिला। इसका मतलब करंट जो हमारा दैट इज लैगिंग बाई एंगल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये वोल्टेज हमारा, ये वोल्टेज का ग्राफ है इस फॉर्म में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें करंट इस फॉर्म में मिला। इसका मतलब वोल्टेज का ग्राफ ये है आपके पास। ठीक है, साइनसोइडल ग्राफ। वोल्टेज और करंट का हम वेरिएशन देखेंगे कि किस फॉर्म में आया। तो ये दिस इज वोल्टेज, ये वोल्टेज है आपके पास, और ये आपके पास करंट का ग्राफ है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, और करंट देखिए क्या हुआ, करंट आपका भी यहाँ से स्टार्ट हुआ माइनस पाई बाई 2, मतलब ये पाई बाई 2 लैग कर रहा है। इट मीन्स वोल्टेज इंक्रीज बाई एंगल ऑफ पाई बाई 2, एंड या वी कैन से करंट लैग्स बाई, या we can say it means from this formula we can write current lags by angle of pi by 2, या आप बोल सकते हैं वोल्टेज इंक्रीज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। किससे, करंट से। मतलब करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, और वोल्टेज जो है करंट से पाई बाई 2 आगे चल रही है। ठीक है, लेकिन हमने इसी फॉर्म में इसको लेके आ गए, फेज डिफरेंस आ गया। देखिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो इतना डिफरेंस आ गया। तो पाई बाई 2 देखे मीन्स वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हुई, तो करंट यहाँ से हुआ, माइनस से स्टार्ट हुआ। ये देखिए, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, नीचे की साइड से देखेंगे आप, नेगेटिव साइड में। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू देखो मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। आगे देखिए, वोल्टेज की वैल्यू देखो, ये वोल्टेज आपके पास, वोल्टेज की वैल्यू 0 हुई तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई। तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ फेज जा रहे हैं ये। मतलब करंट जो है दैट इज लैगिंग बिहाइंड बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, एंड या वी कैन से वोल्टेज लीड्स द करंट बाई एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इसकी वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने आई नोट से किया, पिछले में मैंने एम लिखा था, यू कैन राइट एम और आई, ई नोट लिख सकते हैं, या आप ई एम भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये फेजर डायग्राम है। तो फेजर डायग्राम में देखिए आप, जो आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसमें वोल्टेज और करंट का वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे विद एंगल। तो देखिए ये सपोज करो दिस इज एंगल ऑफ साइन ओमेगा टी। तो ये जो वोल्टेज है, ये देखिए ये फॉर्मूला देखिए आप, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज, मीन्स ये आपके पास ई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्मूला है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और जो साइन कैसे जा रहा है, साइनसोइडल वेव जा रही है, तो इसका फेजर डायग्राम मीन्स रोटेटिंग वेक्टर, एक किस्म का रोटेटिंग वेक्टर इसको बोलते हैं हम। तो देखो वोल्टेज की ये मैक्सिमम वैल्यू है, और एंगल क्या है, ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, और जो करंट है वो पाई बाई 2 लैग कर रहा है। वोल्टेज इस ऐसे जा रही है, पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा कि वोल्टेज ऐसे जा रही थी और करंट भी ऐसे जा रहा था जब रजिस्टर का केस था, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज ऐसे जा रही है और जो करंट है वो ऐसे जा रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ पाई बाई 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये ऐसे देखिए, ये एंगल ऑफ पाई बाई 2, मतलब करंट जो है वोल्टेज से लैगिंग बाई एंगल ऑफ पाई बाई 2 एंड वोल्टेज लीडिंग द करंट बाई पाई बाई 2। ठीक है, तो ये ग्राफ है इसका, ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट वर्सेस ओमेगा टी, इसका फेजर डायग्राम, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए आप, अब आप देख सकते हैं कि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस
इसको मैं लिखता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। इसका मतलब क्या हुआ ये, व्हाट डज इट मीन्स, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो ओमेगा एल लिखा हुआ यहाँ पे, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 2π/t लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू इंटू एल। इसको और भी आगे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी फॉर एसी। तो इसका मतलब ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक्स मीन्स इन जो रेजिस्टेंस और फ्रिक्वेंसी है उसका डायरेक्ट ग्राफ बनेगा, सीधा स्लोप बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब क्या, फॉर एसी के लिए जो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी जो है एसी के लिए हाई होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब एसी करंट को ये ब्लॉक कर देगा। इट विल ब्लॉक एसी करंट, विल ब्लॉक एसी करंट। एसी करंट जो इंडक्टर है वो एसी करंट को ब्लॉक कर देगा। और डीसी का केस में देखिए तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है उसकी, ज़ीरो, मीन्स कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी है। तो अगर आप फॉर्मूला लिखिए, देखिए यहाँ पे करंट का फॉर्मूला देखिए, V/R फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो इन मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू 0 मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जो है 0 है। अगर इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस 0 है तो रेजिस्टेंस 0 है मतलब करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब करंट मैक्स इट विल अलो डीसी करंट टू पास अक्रॉस इंडक्टर। इसका मतलब इंडक्टर में डीसी करंट पास कर जाएगा और एसी करंट को ये ब्लॉक कर देगा। एसी करंट को ब्लॉक कर देगा, क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, ये वाला एक्सएल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा को वैल्यू लिखी मैंने 2π/t दैट इज एल, और 1/t इज फ्रिक्वेंसी। तो 2πfl इज मीन्स एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इन केस ऑफ इंडक्टर। फॉर एसी के लिए एक्सएल इज डायरेक्टली एफ, फॉर्मूला देखिए आप, डायरेक्टली एफ है। इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो उसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे इस फॉर्मूले से देखिए आप, V/XL लिख दिया या E/XL लिख दिया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम आएगी। करंट की वैल्यू कम आएगी मतलब इसको ये ब्लॉक कर देगा, ये पास नहीं करना, इट विल ब्लॉक। ये क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि वाई एसी करंट इज ब्लॉक इन इंडक्टर एंड डीसी करंट इज अलाउड इन दिस इंडक्टर। सो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। और इसमें डीसी के केस में फ्रिक्वेंसी क्या है, 0 है, मीन्स कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी है। तो इसका मतलब अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी सो इट विल अलाउ द डीसी करंट टू पास। तो आप इस फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस AC voltage applied to a inductor. Now we will discuss AC voltage applied to a capacitor. Do you want to know?